ارے ارے رو مت معصوم لڑکی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اب ارتضی شاہ تمہاری معصومیت کا مزید فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ ماہین کو ہاتھ سے پکڑے وہ آگے بڑھی تھی، مگر ماہین نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ ماہین کے کڑے تیوروں کو دیکھ کر نوری شاکڈ ہوئی تھی۔ اپنے پلان کو فیل ہوتے دیکھ کر وہاج کو حیدر کا جھٹکا لگا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کسی کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے؟ ماہین کے سوال پر نوری نے ڈھٹائی سے گردن ہلائی تھی۔ کیوں شرم آئے گی مجھے؟ کردار کی دھجیاں اڑانے کی شروعات تو ارتضی شاہ نے کی تھی نا، میں تو بس وہی واپس لوٹا رہی ہوں تمہیں اور ارتضی شاہ کو الگ کر کے۔ ماہین کی آنکھوں میں حیرت نہ دیکھ وہ پھر سے مخاطب ہوئی تھی۔ سوچو، ارتضی شاہ کو پتہ چلے گا جب کہ تم مجھ سے ہاتھ ملانے آئی تھی سب سے چھپ چھپا کر، کیا وہ تم سے تعلق برقرار رکھ پائے گا؟ بتاؤ، کیا رکھے گا تم سے تعلق تمہارا ارتضی شاہ؟ نوری کی بات پر وہ تعصب سے گردن ہلا گئی۔ اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنا شفاف چہرہ چھپا ہوگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شرم محسوس ہو رہی ہے تمہیں ایک عورت کہتے ہوئے بھی، کیونکہ عورت بے حد انمول ہوتی ہے، شیشے کی طرح کردار کی، صاف شفاف۔ شرم و حیا عورت کا زیور کہلاتا ہے، پاکیزہ محبت کی گواہی۔ عورت یقین کامل ہے، عورت ہی ہے وہ جسے قرآن پاک نے عزت بخشی، عورت ہی ہے جسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت بخشی، عورت ہی ہے جو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ مستحق ہے عزت کی۔ ایک سانس میں بولتی ہوئی وہ کچھ پل کے لیے رکی تھی، مگر نوری کی خود پر جمی نظروں کو دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ مگر تم جیسی عورتیں عورت ذات کے نام پر دھبا ہوتی ہیں، جو خود کو مردوں کے سامنے اپنی محبت کے نام پر فحاشی پھیلا کر خود کو دو کوڑی کا کر دیتی ہیں۔ اس رات کا حوالہ دیتی ہوئی نوری کو وہ لاجواب کیے ہوئے تھی۔ اپنے ان گھٹیا کاموں سے ہم جیسی پردہ دار عورتوں کو بھی بدنام کر دیتی ہیں۔ ماہین کی باتیں سن کر وہاج بھی ساکت کھڑا ہوا تھا۔ عورت ذات کا تم وہ بھیانک چہرہ ہو جس سے ہر باعزت عورت ہوس پرست مردوں کی نظروں سے داغدار ہو جاتی ہے۔ مردوں کی گھٹیا نظروں سے گھبراہٹ کا شکار ہو کر وہ گھر سے قدم تک باہر نہیں نکالتی۔ تم جیسی عورتیں ہی ذمہ دار ہوتی ہیں مردوں کو راہ راست سے بھٹکانے والی۔ یہ تو شکر ہے تم نے میرے ارتضی، مضبوط کردار کے حامل ارتضی شاہ کے سامنے خود کی ذات کو روندا تھا۔ سوچو اگر ارتضی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا تم کبھی اس سے نظریں ملا پاتی یا خود سے نظریں ملا پاتی؟ نوری کے ساکت وجود میں سنسناہٹ پھیلی تھی۔ یہ سوچ کر بھی اگر ارتضی اس رات اس کی باتوں میں آ کر بہک جاتا تو واقعی میں خود کی ذات کو کہیں کھو ہی دیتی۔ جس ذات کی حفاظت وہ اب تک ریحان ملک سے کرتی آئی تھی، وہ پہلے ہی رونٹ دی جاتی اس کے اپنے کیے عمل سے۔ تم بھی باہر آ سکتے ہو وہاج انصاری۔ نوری کو خاموش دیکھ کر وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہاج اس کے سامنے تھا۔ تم بزدل ہی اچھے تھے وہاج۔ افسوس ان سب کے بعد اب رائما تمہاری نہیں ہو سکتی، تعصب سے کہتی ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتے ارتضی کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ شاہانہ انداز میں چلتا ہوا وہ اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ پھینکتا ہوا وہاج کے مقابلان کھڑا ہوا تھا۔ تم سے میں بعد میں بات کروں گا نوری۔ اپنے سامنے ساکت کھڑی نوری کی سائڈ سے گزرتا ہوا وہ وہاج کے مقابلان کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں میں بزدل سمجھتا آیا تھا، مگر تم تو ایک شفاق انسان نکلے۔ وہاج کو گریبان پکڑ کر وہ گرلایا تھا۔ مجھ بزدل کی ہمت دیکھو ارتضی شاہ، سیدھا تمہاری شاہرگ پر پاؤں رکھا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی خود کو ارتضی کی مضبوط گرفت سے رہا نہ کروا سکا تھا۔ تمہیں کیا لگا اگر تم رائما کو میرا نہیں ہونے دو گے تو کیا میں خاموش بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں ارتضی شاہ، میرا انتقام تمہارے نکاح والے دن سے شروع ہو گیا تھا، جب میں نے اپنی رائما کی نظروں میں اجنبیت دیکھی تھی۔ ارتضی کی گرفت اس کے گریبان پر ڈھیلی پڑی تھی۔ جب میرے اور رائما کے درمیان سب ٹھیک ہونے لگتا، جب تم ارتضی شاہ کسی دیوار کی مانند ہم دونوں کے درمیان حائل ہوئے ہو، کب تک تمہیں برداشت کرتا؟ تمہیں ماہین کے ساتھ دیکھ کر مجھے آگ لگتی تھی۔ جب میں اپنی محبت کو نہیں پا سکتا تو تمہیں کیسے خوشیاں حاصل کرنے دوں؟ نفرت انگیز لہجے میں کہتا ہوا وہ کہیں سے بھی پہلے والا وہاج نہیں لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ارتضی کا ڈر صاف دکھائی دیا کرتا تھا۔ آج تو فقط انتقام بول رہا تھا اس کے لہجے میں اور ہر عمل میں۔ ماہین تو ناسمجھی میں فقط اسے سن رہی تھی،
जो उससे और इर्तज़ा से अपनी नफ़रत का इजहार कर रहा था। उसी दम मैंने सोच लिया था कि अगर राइमा मेरी नहीं होगी तो माहीन साहिबा को भी आपसे दूर करके ही रहूँगा, मगर यहाँ मैं मात खा गया। आपकी ये माहीन बहुत ज़्यादा समझदार निकली, या ये कहूँ कि मेरा सिक्का ही खोटा निकला जो उसे अपनी बातों में ना ले सका। नूरी को नफ़रत से छोड़ता हुआ माहीन को खूंखार नज़रों से वो देख रहा था, जिसकी समझदारी के बाइस वो और नूरी दोनों नाकाम हुए थे। अपनी साजिश में तुम तो क्या, मुझे और माहीन को कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी मम्मा ने नहीं बताया था तुम्हें? काफ़ी देर तक उसे सुनने के बाद इर्तज़ा ने बोलना शुरू किया था। वैसे बहुत अच्छा किया बाबा ने जो तुम्हारा मेरी बहन के साथ जुड़ा रिश्ता वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया। जो शख्स शादी से पहले ही हमारे ख़ानदान का दुश्मन है, वो शादी के बाद क्या करता मेरी बहन के साथ? इर्तज़ा की बात पर वहाज ने नासमझी में बोलते हुए इर्तज़ा को देखा था। क्या मतलब? वहाज के सवाल पर इर्तज़ा मुस्कुरा उठा था। मतलब ये कि पहले तो मुझे ज़्यादा बुराई नज़र नहीं आई तुम्हारे और राइमा के रिश्ते, मगर अब राइमा को भूल जाओ तुम, क्योंकि अब मैं इर्तज़ा शाह तुम्हारे साथ अपनी बहन का रिश्ता तो दूर की बात, उस पर तुम्हारा साया भी ना पड़ने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मजबूत लहजे में कहता हुआ वो वहाज को साकित कर गया। इसका मतलब इर्तज़ा शाह तुम्हें मेरे और राइमा के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था? वहाज के सवाल पर माहीन ने इर्तज़ा को देखा था। अब है। बात ख़त्म करता हुआ नूरी को खुद को देखता पाकर वो उसकी सिमत बढ़ा था। उस रात मैंने आपको जो कुछ भी कहा, बहुत शर्मिंदा हुआ था मैं खुद के अल्फाज पर, कि मैं कौन होता हूँ किसी औरत के किरदार को जज करने वाला, किसी के किरदार की धज्जियाँ उड़ाने वाला, मुझे गलत अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए आप और आपके अल्फाज ने उकसाया था। मैं अपने नफ्स पर तो फतह पा गया था, मगर अपने अल्फाज पर काबू नहीं रख सका। गुस्से में जो मुंह में आया बोलता गया, ये जानते हुए भी कि मेरे अल्फाज आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, मगर मैं फिर भी बोलता गया ताकि आप सीधी राह से ना भटकें। और जब आप पर अपनी बातों से कोई फ़र्क ना पड़ते देखा तो मैंने आपको हवेली से जाने के लिए कह दिया। माहीन खामोशी से नूरी और इर्तज़ा को देख रही थी। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने नूरी जैसी औरत देखी थी जो मोहब्बत की खातिर सब करने को तैयार हुई थी। हूँ तो मैं भी मर्द ज़ात थी, कब तक आप और आपकी पेशकश को फरामोश करता। एक ना एक दिन या एक अरसा या कभी ना कभी तो मैं भी भटक ही जाता और आपके साथ मिलकर गुनाह कर बैठता, क्योंकि घर से बाहर निकलने वाली औरत के पीछे तो फ़कत एक शैतान होता है, जबकि हम मर्दों के पीछे 10 होते हैं जो बड़ी आसानी से हम मर्दों को नफ्स का पुजारी बना देते हैं। अपने नफ्स पर काबू पाते हुए मैंने आपको जाने के लिए कहा था, ताकि आपको और खुद को इस संगीन गुनाह से बचाने की खातिर आपको वहाँ से निकाल देना ही बेहतर लगा मुझे, मगर मेरी कोशिश नाकाम ठहरी। आप एक दलदल से निकलकर दूसरी दलदल में खुद ही गिर गए। आपके हक में मैं जिस शख्स के साथ लड़ा, आप उसी घटिया शख्स के साथ मिल गए। उस दिन मुझे अपनी की गई गलती पर बहुत पशेमानी हुई थी। नम आंखों से इर्तज़ा को देखती उसके बराबर में खड़ी माहीन को वो हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ नूरी, अपने अल्फाजों से तुम्हें यहाँ तक लाने के पीछे शायद कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। इर्तज़ा को खामोश होते देख अपने हाथों की पुछ से आंसू साफ करती हुई सुर्ख आंखों से इर्तज़ा को वो देख रही थी। माफ़ कर दूंगी आपको साईं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे मुझे। रोकने के बावजूद भी आंसू उसके रुखसार पर बहे चले जा रहे थे। क्या नहीं है मुझ में जो इसमें है? माहीन की सिमत इशारा करती हुई इर्तज़ा के ऐन सामने वो आन खड़ी हुई थी। आप अब भी मुझे समझने की बजाय बेवकूफ़ी कर रहे हैं। माहीन की तरफ नज़रें किए वो नूरी से मुखातिब हुआ था। इससे कई ज़्यादा खूबसूरत हूँ, बस एक कमी रख दी अल्लाह साईं ने मुझ में कि मुझे गरीब बनाया। शाकी नज़रों से नूरी को देखती हुई माहीन उसके उससे ज़्यादा खूबसूरत होने की बात दिल से हामी भर गई थी। चलें गरीब बनाया भी, आपकी हवेली की मुलाजमा ना बनाता, फिर तो आप मोहब्बत कर सकते थे ना मुझसे, कर सकते थे ना मोहब्बत। हिज़यानी अंदाज में बोलती हुई वो वहाँ सबको पहली बार काबिल रहम लगी थी। नहीं होती फिर। माहीन के हाथ को थामे हुए इर्तज़ा को देखकर वो पीछे हुई थी। बख्श दिया आपको। आज के बाद ये नूरी कभी भी आपकी राह नहीं देखेगी, अपने लिए जिएगी इज्जत के साथ, कहती हुई इर्तज़ा और माहीन से दूर होकर वो दूसरी साइड पर हो गई। हर औरत काबिल इज्जत और कीमती होती है नूरी, और तुम बहुत कीमती हो। खुद को इस तरह बेमोल मत करो। माहीन के अपने साथ इतने नर्म लहजे पर वो कुर्ब से आंखें मीच गई थी।
नूरी को कंधों से थामे हुए वहाज को देखकर इर्तजा माहीन का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया था। दोनों का दर्द बराबर था। एक को महबूब हासिल होते होते रह गया था, जबकि दूसरी ला हासिल के पीछे भागकर अपने पांव छलनी करवा चुकी थी। शायद उनकी जीस्त में ये ला हासिल रहना करार पाया था। नेक्स्ट वीक आपको फिर से ट्रीटमेंट के लिए आना होगा। ये जो डाइट प्लान मैंने आपको लिख कर दिया है ना, ये सिर्फ 1 वीक के लिए है। नेक्स्ट वीक जब ट्रीटमेंट के लिए आएंगी तो आपकी हेल्थ को देखकर दोबारा से डाइट शीट दूंगा। जब तक के लिए आपको इसी पर अमल करना है। अपने मखसूस अंदाज में अपनी पेशेंट को साथ चलते हुए डॉक्टर शाहजहान कमाल हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए थे। हल्की सी मुस्कुराहट जो उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा थी। जी डॉक्टर। अभी अपने पेशेंट को मजीद हिदायत देते सामने कार्डियोलॉजी डॉक्टर नौफल इब्राहिम के साथ हैदर शाह को महवे गुफ्तगू देखकर पेशेंट को जाने का कहता हुआ वो उनकी तरफ बढ़े थे। हैदर भाई, आप यहाँ पर? परेशान होते हुए वह हैदर और नौफल इब्राहिम की तरफ बढ़ा था कि अचानक ही नर्स के पुकारने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हैदर, अब मजीद देर नहीं की जा सकती। जितनी जल्दी तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो जाए उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। रिपोर्ट्स हाथ में पकड़े हैदर खामोशी से सुन रहा था। 3 महीने में तुम्हारी हेल्थ में बेहतरी आने की बजाय और भी बिगाड़ पैदा हुआ है। तुम्हारी हालत ये कोई अच्छा साइन नहीं दे रही। कहीं पर भी कभी भी तुम्हें मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। हैदर शाह, तुम्हारे लिए इतनी सी उम्र में हार्ट पेशेंट बनना आम बात तो नहीं है। तुम मेरे ऐसे वाहिद पेशेंट हो जो मेरे दोस्त होने के साथ साथ मुझे तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी भी है। क्या मेरे साथ भी शेयर नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और हक बनता है मेरा जानने का। हैदर के कंधे पर हाथ रखते हुए वो फिक्र से बोल रहे थे। दर्द तो हर एक के सीने में छुपा होता है, बस फर्क इतना होता है कि कोई जता देता है और कोई दिल के किसी कोने में ही दफना देता है। कौन है खुशकिस्मत जिसे दुनिया में बिना जलालत के मोहब्बत और महबूब दोनों मिल जाते हैं। सर झुकाए वो आहिस्तगी से बोल रहा था। हाँ, जब ही तो हार्ट पेशेंट बन गए हो। अब की बार डॉक्टर नौफल चबा कर बोले थे। उनकी बात पर हैदर शाह मुस्कुराया था। डॉक्टर नौफल को जरा नहीं भाया था। अपने लिए ना सही अपनी वाइफ के लिए ही सर्जरी के लिए मान जाओ। एक बार फिर उन्होंने हैदर को कायल करना चाहा था। इसीलिए तो आज यहाँ मौजूद हूँ। रिपोर्ट पर नजरें जमाए वो नौफल इब्राहिम को खुशगवार हैरत का शिकार कर गया था। तो इतनी देर से तुम मुझे पागल बना रहे थे। हैदर के गले लगते हुए वो उससे ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। अब बस करें डॉक्टर साहब, मुझे घर भी जाना है हया को सब बताने के लिए। डॉक्टर नौफल इब्राहिम से अलग होते हुए वो आखिर में संजीदगी से बोला था। ऑल द बेस्ट। हैदर को वहां से जाते देखकर वो दिल में उसकी लंबी जिंदगी की दुआ करते हुए अपने कैबिन की सिमत बढ़े थे, जब डॉक्टर शाहजहान कमाल की आवाज़ पर मुड़कर उन्हें देखते हुए सवालिया अंदाज में मुस्कुराए थे। कैसे हैं आप डॉक्टर नौफल इब्राहिम? हैदर को वहां से जाते देखकर पुरजोश अंदाज में बोलता हुआ शाहजहान उनका सवालिया नज़रों से खुद को देखना इग्नोर कर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। अपने कैबिन में उसे भी साथ ले जाते हुए वो मुबहम सा मुस्कुराए थे। हैदर शाह आपके पास? मतलब क्या वो आपके पेशेंट हैं? अगर हैं तो कब से? डॉक्टर नौफल इब्राहिम की भवें सुकड़ी थी। शाहजहान कमाल के पूछने पर मेरा कोई हक नहीं है आपसे आपके पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हासिल करने का, मगर हैदर शाह को देखकर मुझसे रहा नहीं गया था। एक्चुअली वो मेरे जानने वाले भी हैं, अनकरीब ही बहुत गहरे रिश्ते में बनने वाले हैं हम, इसलिए पूछ रहा हूँ। डॉक्टर नौफल की सवालिया नज़रों से घबरा कर वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था। आप भी एक डॉक्टर हैं, इसलिए आप कह रहे हैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हैदर शाह पिछले 3 माह से हार्ट पेशेंट हैं। उनके दिल में सुराख है और अब नौबत सर्जरी तक पहुँच गई है। डॉक्टर नौफल इब्राहिम के मुंह से निकले अल्फाज शाहजहान को साकित कर रहे थे। बज़ाहिर बाहर से खुश नजर आने वाला हैदर शाह देखकर कहीं से भी नहीं अंदाज़ा कोई लगा सकता था उसके बारे में कि वो दिल के मामले में इस कदर हसास निकलेगा। वो सर्जरी के लिए नहीं मान रहे क्या? काफ़ी तवक्कुफ के बाद शाहजहान गोया हुआ था। बहुत बार कहने के बावजूद नहीं मान रहा था, मगर आज अचानक हामी भर गया है सर्जरी के लिए। हैदर शाह जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, हसास नर्म तबीयत के मालिक। इसलिए खुदा से दुआ है कि वो हमेशा मेरे दोस्त के रूप में सलामत रहे, आमीन। डॉक्टर नौफल के रुकते ही वो फौरन से बोल गया था। इतना काफ़ी है या और भी कुछ जानना है? दोस्ताना लहजे में पूछते हुए शाहजहान के सवाल कुन चेहरे को वो पढ़ गए थे।
3 माह पहले मेरी और हैदर की मुलाकात इसी कैबिन में हुई थी। आया तो वो अपने दाएं हाथ के दर्द को लेकर था। मेरे पास नॉर्मल ईसीजी करने और चंद टेस्ट करवाने के बाद अपने वो दिल में सुराख के बारे में सुनकर ज़रा भी अफसुर्दा नहीं हुआ था। उल्टा मुझे परेशान देखकर पता है क्या कहा था? डॉक्टर नौफल इब्राहिम के सवाल पर वो आंखों से ही पूछ गया था। अल्लाह पाक जो करते हैं हम सब की बेहतरी के लिए करते हैं, इसमें भी मेरे ही लिए कोई बेहतरी होगी। मजबूत लहजे में कहता हुआ वो मुझे हैरान कर गया था। उसकी सबसे बड़ी बात जिस पर मैं हंस पड़ा था, शाहजैन कमाल बस डॉक्टर नौफल के तासुरात देखकर, उनकी हैदर के साथ इतनी उनसियत देखकर हैरान हुआ था। उसने मुझे कहा कि अब मैं अपनी संजीदा ज़िंदगी में तबाही मचा दूंगा। मैंने कहा कि क्या करोगे ऐसा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में तबाही मच जाए? तो कहने लगा मैं अब शादी करूंगा और अब अपनी ज़िंदगी में तबाही मचाने के लिए तबाही को लाऊंगा। एक नई ज़िंदगी के लिए उम्मीद भरा लहजा जो पल भर के लिए मेरे वजूद को साकित कर गया था। ठीक 1-1.5 माह बाद मुझे उसकी शादी की खबर मिल गई। खुशी हुई थी ये सोचकर उसके दिल में ज़िंदगी जीने की रमक बाकी है। जब ही मैंने फैसला किया था कि उस शख्स को कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर नौफल की आंखें नम हुई थीं। इंशाअल्लाह हैदर भाई को कुछ नहीं होगा, पुरनम लहजे में कहते हुए शाहजैन ने इर्तज़ा को कॉल मिलाई थी, मगर दूसरे ही लम्हे कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वो फ़ोन रख गया था। 2 महीने बाद हैदर की सर्जरी कामयाब ठहरी। सर्जरी के बाद हैदर शाह का इस्तकबाल बड़े ही शानदार तरीके से किया गया था। हया के बेजा ख्याल और मोहब्बत की वजह से हैदर ने बहुत जल्द रिकवर किया था। मेरी पहले बात सुन लो, हम फिर चलते हैं। हैदर की बात सुने बगैर वो शाहिदा बेगम के पास आ बैठी थी। देखे ना खाला जानी, ये सड़ी हुई कुकड़ी मुझे बता कर नहीं जा रहे। हैदर जो कितने दिनों से उसे बताने की कोशिश कर रहा था, उसके आगे पीछे फिर रहा था, मगर हर बार कहने से पहले ही हया उसे खामोश करवा देती। जब उसे कल अपने प्रेग्नेंट होने का पता चला था, जब से उसने हैदर को एक टांग पर नचा के रखा हुआ था और वो बेचारा खामोशी से नाच भी रहा था। हैदर मेरा ना तुम्हारे हाथ का बना चीज़ ऑमलेट खाने का दिल कर रहा है। पहली फरमाइश सुनकर हैदर का सर चकराया था। कुछ देर बाद चीज़ ऑमलेट सामने रखता हुआ लैपटॉप लिए सीधा हो बैठा था। मुझे ऑरेंज जूस पीना है। बच्चों जैसी शक्ल बनाए वो हैदर को बहुत प्यारी लगी थी। इसे जूस ला कर देता हूँ। वो वापस से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुआ था। कुछ घंटे सोने के बाद लेटा हुआ हैदर अभी अपनी आंखें बंद किए सोने ही लगा था कि अगले ही लम्हे हया की एक और फरमाइश पर वो मुस्कुराता हुआ उठा था। मुझे नींद नहीं आ रही खुशी के मारे, इसलिए तुम भी मेरे साथ। माहीन की गुड न्यूज़ सुनकर भी उसका यही हाल था। अब अपनी बारी में तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सारी रात जागने के बाद भी हया की फरमाइशें ख़त्म नहीं हुई थी। अगली सुबह वो फिर से शुरू हो गई थी। इन सब से सर पकड़कर बैठता हुआ हैदर आखिरकार थक गया था। हया की कल से शुरू हुई फरमाइशों से थक कर बेड पर गिरने के से अंदाज में लेटा था वो। अब भी जब वो अपने दिल की बात बताने लगा, वो नीचे आ गई थी। हैदर बेटा, इस हालत में हया की हर बात माननी है तुम्हें। उसका जो दिल करता है उसे ला कर दो। जहाँ जाना चाहती है उसे वहाँ ले कर जाओ। वैसे भी अब अपने मैके तो नहीं जा सकती। हया का मुंह उतर गया था बुखारी विला के बारे में सोचकर। हमदान बुखारी, शाकरा बेगम और रियाज बुखारी यूएस में मुकम्मल तौर पर शिफ्ट होने की खातिर गए थे। जी माँ, ये मेरी कोई बात सुने जब ना, तभी मैं इसे कहीं लेकर जाऊंगा ना। हैदर और हया की नोक झोंक देखकर माहीन हमेशा से ही मुस्कुराती आई थी। आज भी उन दोनों को देखकर वो शाहिदा बेगम के सामने आन बैठी थी। ले जाए ना हैदर भाई। माहीन को भी हया के हक में बोलते देखकर हैदर हार मान गया था। अच्छा ठीक है, तुम जाकर तैयार हो, आओ चले माहीन आपी। माहीन को साथ लेती हुई वो चहकी थी। अल्लाह इन दोनों बेटों की जिंदगियों की खुशियां सलामत रखे। हैदर की पेशानी पर बोसा देते हुए वो माहीन और हया दोनों की तरफ से खुशखबरी सुनकर फूले नहीं समा रही थी। हया मैं प्यारी नहीं लगती अब? इर्तज़ा मेरी तरफ देखते भी नहीं है। इर्तज़ा का ज़्यादातर वक्त अस्पताल में गुजरता तो माहीन को नागवार गुजर रही थी ये बात, और उसे यही वजह लगी थी इर्तज़ा के अस्पताल में ज़्यादा वक्त गुजारने की। तो किसने कहा है आपको बानो कुदसिया बने फिरने के लिए? माहीन के रफ से कैचर में कैद किए बालों और आम से हुलिये पर चोट की थी उसने। कभी मुझे देखा है? हैदर की नज़रें नहीं हटती मुझ पर से। अपनी लिपस्टिक को मजीद गहरा करते हुए माहीन को अपना सरापा देखने पर वो मजबूर कर गई थी। शीशे में अपना अक्स देखती माहीन खुद भी खुद को बानो कुदसिया ही लगी थी। बेसाख्ता मुस्कुरा दी। खैर से जाओ और खैर से आओ, दुआ देती हुई माहीन मुस्कुराकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी।
मलिक रेहान के साथ की गई बेवफाई बहुत महंगी पड़ने वाली है नूरी मैडम तुझे। बहुत सर चढ़ा लिया था तुझे और तू अपनी औकात ही भूल गई। अब वक्त आ गया है तुझे तेरी औकात दिखाने का। तैश से भरा रेहान पिछले कई दिनों से शमाजिया और अपनी बेटियों की दूरी की वजह से बिखरा हुआ शेर बना हुआ था, बिफरा हुआ शेर बना हुआ था। ऊपर से नूरी भी उस दिन के बाद से मलिक हाउस में नहीं आई थी। नूरी को कॉल मिलाता हुआ वो अपनी बेटियों की तस्वीर देखता मजीद भड़क उठा था। क्या हुआ मलिक साहब? कई कॉल्स के बाद कॉल पिक करती नूरी की खूबसूरत और मासूम आवाज़ पर वो दिल में ही जब्त कर गया था। कुछ खास नहीं, वैसे काफ़ी अरसे से तुझे अपने साईं सरकार को इतना करीब से देखने का मौका मिला था। बड़ी खुशी हुई होगी ना तुम्हें। इर्तज़ा के जिक्र पर बिना कोई तासुरात दिए वो रेहान के जताते हुए लहजे को नोटिस करती हुई उसके स्पॉट बॉय को जाने का कहते हुए साइड पर आकर बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं नूरी डार्लिंग, कुछ नहीं नूरी डार्लिंग। रेहान के लहजे पर वो कुर्ब से आंखें बंद कर गई थी। जितना देखना है इर्तज़ा शाह को जी भर कर देख तो लिया होगा ना तुमने। नूरी के खूबसूरत चेहरे के रंग फक हुए थे। क्या करने का इरादा है साईं के साथ? रेहान के अंदाज से वो डरी थी। मैं कहाँ कुछ करने वाला हूँ। वो आज दुनिया मतलब गाँव से हमेशा हमेशा के लिए खुद ही रुखसत हो जाएगा। फोटो फ्रेम साइड पर रखते हुए वो सुकून का सांस भर गया था। इर्तज़ा साईं को कुछ नहीं करेंगे आप। दबे अंदाज में वो गुर्राई थी। मुझे रोकने वाली तुम कौन हो? भूलो मत अपनी औकात, दो कौड़ी की मुलाजमा। चबा कर कहता हुआ वो अपनी जगह से उठा था। अगर इर्तज़ा साईं को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अचानक से रेहान को वो वार्न कर गई थी। कौन कमबख्त चाहता है कि तुम छोड़ो मुझे? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम मुझे हर वक्त ऐसे ही अपने हुस्न के जाल में जकड़े रखो। और अब देखो शमाजिया भी चली गई है। कमीनी हंसी हंसता हुआ वो नूरी को जेर लगा था। मैंने तुम्हें दिखा दिया है ना तो तुम मुझसे बदला दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना तो तुम मुझसे बदला लो। साईं के साथ कुछ मत करो। तुम जो चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ। फ़ोन पर मौजूद नूरी रेहान के दिल की दुनिया तबाह किए हुए थी। जैसे जादूगर की जान तोते में होती है वैसे ही तेरी जान इर्तज़ा शाह में बसती है। नूरी के ख्याल को झटकता हुआ वो नफरत से गोया हुआ था। डार्लिंग अब बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो मेरे आदमी अपना काम कर भी चुके होंगे। नूरी के चेहरे पर से रंग उड़े थे। वहीं वो तमस्कराना अंदाज में कहकहा लगा गया था। साईं जेरे लब बुड़बुड़ाती वो जानों के बल जमीन पर बैठती चली गई थी।